Okay. The second mechanism for substitution nucleophilic reactions is SN1. Okay. Word देखो S for substitution, N for nucleophilic. One is unimolecular. Means through this reaction, through this mechanism, the substitution reaction follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. जैसे SN2 में था ना, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो हो रहा था. इन दिस SN1 mechanism, the reaction follow first order kinetic. एग्जाम्पल देखो, जो एग्जाम्पल ली हुई है वही कर रहा हूं. इन दिस tert butyl bromide, this compound CH3 3 times CBr, tert butyl bromide, on reaction with aqueous NaOH or KOH yields the COH, tert butyl alcohol, plus Br negative. In this reaction, rate is directly proportional to concentration of alkyl halide only. Remember this point. Reaction rate is dependent on concentration of alkyl halide only, not on the concentration of nucleophile. ठीक है. So statement read करके देखो. The reaction between tert butyl bromide and hydroxide ion yields tert butyl alcohol and follows first order kinetic. ठीक है. First order kinetic means the rate of reaction depends on the concentration of only one reactant. और one reactant क्या है? Tert butyl bromide. That one reactant is alkyl halide. ठीक है. So first point जो learn करना है, that is in SN1 mechanism, in SN1 mechanism, rate of reaction depends upon concentration of alkyl halide only. ठीक है बच्चे. alkyl halide only and is independent the concentration, independent from the concentration nucleophile. Okay. In above reaction, which one is nucleophile? This OH negative. Okay. Compare it with SN2. In SN2, rate of reaction depends on both concentration of both of the reactants. This is the first difference. Next, no inversion of configuration. No inversion of configuration. Okay. Whereas in SN2, the configuration of product formed was opposite to that of reactant. Okay. Instead, racemization takes place. I'll come to this word. Racemization takes place. This
word racemization. We'll do this term in this lecture only. Later part. अभी सिर्फ लिखना है. The reaction proceeds in two steps. Proceeds in two steps. Okay, instead of single step, this reaction proceeds in two steps. Check करो SN1 कैसे SN2 कैसे हो रही थी? That reaction takes place only in one step without formation of intermediate. But through SN1, reaction takes place in two steps. Step 1. Step 1 is CH3 3 times CBr. Write down step 1. लिख ही लो formation of carbocation. Mechanism करवा रहा हूँ. Formation of carbocation. ठीक है. In this step, the bond between carbon and halogen is cleaved. क्या प्रोडक्ट बना? CH3 CH3 positive. Agree? This carbocation is formed. Plus PR negative. Okay, in this step, carbocation is formed. In step 2, this carbocation जो भी फॉर्म हुआ था CH3C is attacked by the nucleophile OH negative. So second step is attack of nucleophile. अब बच्चे अनम्यूट कर लो, मुझे आंसर देना अगर समझ आया. This shape is triangular planar. Shape of carbocation इसकी बात हो रही है. It is triangular planar. Okay. The nucleophile can attack from which possible direction? Means will it attack from this reaction, this side, or can this nucleophile attack from this side also? मैं options लिख रहा हूँ 1 or 2. 2 sir. Question ध्यान से सुन लो. From which side nucleophile will attack on the carbon which has positive charge? Sir, From 2. the front side, back side, or both sides are equal? Equal probability. But remember one thing, it is a planar thing. ऐसा है, triangular planar है. Carbocation is triangular planar. दोबारा देख लो. Nucleophile, will it attack from this direction? Front side ले लो. Or will it attack from this direction? Back side. 1 or 2. सोचो, जो सोच रहे हैं बोल दो, कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा. अभी तक जो बोल रहा है आंसर रॉन्ग है. Back side. 1 है सर. नहीं, अभी भी रॉन्ग है. Sir, equal. सर इक्वल होगा. बची वही पॉसिबिलिटी है. देखो, सिंस दिस ज्योमेट्री इज
triangular, planar. So there is no difference whether the nucleophile will attack from left or right, front side or back side. There is no difference. Okay. So because of this, OH can attach with this carbon in either direction. ठीक है. This leads to racemization, जो मैं term बोला था. Properly समझाऊंगा racemization क्या है. But फिलहाल get this point. Nucleophile can attack the carbon bearing the positive charge through either direction. This product is formed. Okay. This is step number 2. Step 1 is a slow step. Step 2 is a fast step. Is there any importance of slow step or fast step? Yes, there Rate is. determining step. Very good. Yes, there is an importance of slow step and fast step. Since step 1 is a slow step, therefore, it is a rate determining step. Okay, it is a rate determining step. The slow step is rate determining step. So second step की कोई ज़्यादा importance नहीं है. First step, which decides the rate of reaction. पहले इतना note कर लो, फिर order of reactivity करवा रहा हूँ. Note down this SN1 mechanism. You can zoom in from your side. सर Yes. सर एक बार दोबारा दसो कि केड़ी साइड तो अटैक करूंगा. Both sides. और मेरा Both sides, Ramanpreet. Both sides. Okay. Nucleophile can attack ठीक है from सर. both sides. Equal probability. Done. ओके सर. Okay. Now come to the most important part, reactivity. Okay. Third point. So, the order of reactivity of various alkyl halides towards nucleophilic substitution reactions is, any guesses?
ऑपोजिट है उससे 1 डिग्री ग्रेटर देन सॉरी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल halides. Okay, this is the order. रीजन डिस्कस कर रहे हैं. सुबेग तेरे एग्जाम नहीं था आज? पर कल सी एग्जाम ते हुन Okay. कल हैगा. कल है. ठीक हो गया? हाँ जी हाँ जी. Okay. The order of reactivity of various alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree alkyl halides. Reason देखो why. Reason is 3 degree एक मिनट. In SN1 mechanism, carbocation is formed in the rate determining step. ठीक है, in the rate determining step, and we know 3 degree carbocation are most stable. इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है. One line is enough. Since 3 degree carbocations are most stable, so these will be formed in preference to 2 degree carbocation or 1 degree carbocation. Okay. Therefore, the order of reactivity is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. This. Okay. So order of reactivity in SN2 was 1 degree, 2 degree, 3 degree. In case of SN1, it is opposite. Order is of reactivity is now known to you. So try to attempt this question. Predict the order of reactivity of following compounds in SN1 mechanism. देखो बच्चे, first answer. First, the 4 isomeric bromobutanes. पहले तो ब्रोमोब्यूटेन्स के आइसोमर्स बनाओ. The 4 isomeric bromobutanes are A part N-bromobutane CH3 CH2 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 Br. Second is iso CH3 CH CH2 Br. C is
sec butyl CH3 CH2 CH CH3 Br and D is tert butyl. इसके अलावा अगर किसी को कोई और स्ट्रक्चर आइडिया है तो प्लीज लेट मी नो. These are the structures of 4 isomeric bromobutanes. Now, can you arrange these in order of reactivity in SN1 mechanism? कैसे proceed करोगे after drawing the structure? Identify 1 degree, 2 degree, 3 degree. जो simple वाले हैं पहले वो तो करो. A part is 1 degree alkyl halide. B is 1 degree alkyl halide. C is 2 degree alkyl halide. सर हाँ जी बोलो. 3 डिग्री. Third is 3 degree. Okay, it is 3 degree. Now, now trend is very clear. 3 degree alkyl halides are more reactive than 2 degree than 1 degree. So D greater than C. तो ओके है. 3 degree, 2 degree. नेक्स्ट क्या होएगा? नेक्स्ट इज बच्चे B followed by A, because B is somewhat substituted. Direct नहीं है, but here it's slight substitution. ठीक है, as comparative to A, वो बिल्कुल भी substituted नहीं है. So this is the answer. Okay, point to remember क्या था ड्रॉ करने के बाद? 3 degree alkyl halides are more reactive than 2 degree, more reactive than 1 degree towards SN1 mechanism. Confusion पता एग्जाम में क्या होनी है? Confusion ये होगी बच्चे भी SN1 में 1 degree, 2 degree, 3 degree है या SN2 में है. मैनेज करना उसे बार बार सोच के. ओके, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे बाद में. सेम ही पार्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है. इस इन ऑर्डर्स में SN1 SN2 में कोई डाउट है तो ऑन द स्पॉट पूछ लिया करो. सर हाँ जी. सर ये C 3 डिग्री नहीं होएगा? C is 2 degree बच्चे. It is bonded with देख निश, it is bonded with 2 carbons. ठीक है, अब तुम बता दे 3 डिग्री कैसे होएगा, मतलब मैं तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. सर भूल गया था वो आगे तक, मतलब मैं. ओके, और नहीं नेक्स्ट नहीं देखना, डायरेक्ट बॉन्डिंग चेक करनी है. ठीक है बच्चे, मैं इस पे इतना टाइम इसलिए लगाया बिकॉज आई नो ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा एग्जाम में. सिलेक्ट करना या फिर विच इज मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव ऐसे डायरेक्ट सिलेक्ट करना या फिर ऑर्डर लिखना. सिलेक्ट करना आ गया, चलो फिर थोड़ा इजी है ऑर्डर लिखना. प्लीज रीड इट केयरफुली. 2 चीजें अच्छी तरह भी, SN1 और SN2 पूछा है. सेकंड इंक्रीजिंग पूछा है और डिक्रीजिंग पूछा है. जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो कौन सा है? इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, ध्यान से अगर लिखना है तो लिख भी लो. जो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. अभी भी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ओवर नहीं हुई है. लास्ट टॉपिक बचा है और आज का अपना ओनली टॉपिक है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स
हेडिंग फॉलो स्टीरियोकेमिकल aspects of nucleophilic substitution reactions. Stereochemical aspects of nucleophilic substitution reactions. फर्स्ट एस्पेक्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी. दिस टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी ये हमने पहले भी किसी चैप्टर में डिस्कस करी है. प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे. विच चैप्टर याद है किसी को किस पॉइंट पे डिस्कस कर रही थी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. ठीक है. प्लेन पोलराइज्ड लाइट पहले देखो बच्चे, इसे सिर्फ देखने वाला ठीक है. ये नॉर्मल वाइट लाइट जिसे बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. this is unpolarized light. Unpolarized light, normal light और white light बोल सकते हो इसे. This light is made to pass through a Nicol prism, special type of glass. बट इसकी प्रॉपर्टीज नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहे. इट इज अ नाइकोल प्रिज्म. इसमें से जो लाइट पास होके बाहर आई, मैं कलर डिफरेंशिएट कर देता हूँ ताकि अलग रहे. that has vibrations only in one plane. पहले डिफरेंस दिख रहा है. इनपुट क्या था, आउटपुट क्या है. पहले नॉर्मल लाइट है जिसकी वाइब्रेशन हर प्लेन में है. जैसे अपनी बल्ब होता है, ट्यूब लाइट होती है, एक ही डायरेक्शन में लाइट तो नहीं देती, हर डायरेक्शन में लाइट है. बट इट हैज वाइब्रेशन. जो अभी बाहर आई नाइकोल प्रिज्म से, that has vibrations only in one plane. It is known as polarized light. Polarized light. क्या पहले वाली थी unpolarized. This one is polarized light. This polarized light then made to pass through a solution of substance X. It contains some substance X. Solution of substance X. फिर इससे लाइट पास हुई. ठीक है. 3 cases are possible now. First case, जैसे लाइट पहले थी उससे राइट एंगल पे रोटेट हो जाए. ओके.
याद आ गया, not in coordination compound. This we have discussed in biomolecules. Right side rotate. सर वो तो ऑप्टिकल में आइसोमेरिज्म करा था उसमें. I maybe so, but biomolecules में है topic थोड़ा सा levorotatory, dextrorotatory. Okay. नॉर्मल प्लेन है, प्लेन से राइट साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए. क्लॉकवाइज ही हो रहा है ना, ठीक है. सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, देखो दिमाग लगा के थोड़ा गेस करो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बाकी. सेकंड पॉसिबिलिटी इज जो नॉर्मल प्लेन था इस लाइट का उससे लेफ्ट साइड को रोटेट हो जाए. है ना. और लास्ट पॉसिबिलिटी कुछ भी ना हो, जैसे है वैसे ही पास हो जाए. थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर. अगर वन और टू में से कुछ भी हो रहा है, plane of polarized light is rotated either clockwise or anti-clockwise, then the substance is said to be optically active. Substance X जिसमें से लाइट पास करी है is optically active. Okay. If it remain as such, third case हो, in this result क्या होएगा, X is optically inactive. It is optically inactive. पूरा डायग्राम देखो, ऊपर वाला जो ब्लैक लेटर्स में लिखा है रीड कर लो, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम जो समझाया है क्या लिखा हुआ है. रीड करके देख लो, फिर इसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे.
जी डन. Yes, sir. Okay. Plane polarized light optical activity is this. Okay. ठीक है. ये फिनोमिनन अप्लाई करेंगे. ये टॉपिक नहीं कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी एटसेट्रा, सिर्फ डेफिनेशन है छोटी सी भी. कुछ कंपाउंड्स लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज, और बहुत सारे कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे. बट जो अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे है. हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं. इसी का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का सेकंड पार्ट है, दैट इज मॉलिक्यूलर असिमेट्री, chirality and enantiomer. One by one इन definitions को पिक करूंगा. First is molecular asymmetry. ठीक है, definition लिखो. If four different atoms or groups are attached to carbon atom then this particular carbon atom, इसकी बात हो रही है, particular carbon atom is known as asymmetric carbon, known as asymmetric carbon or stereocenter. एग्जाम्पल देखो. डेफिनेशन तो चलो सिंपल ही है. एक कार्बन है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड हैं. ठीक है, बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं. देयर इज वन कार्बन, एक ए अटैच्ड है, एक बी अटैच्ड है, एक एक्स अटैच्ड है और एक वाई अटैच्ड है. ठीक है, देन दिस कार्बन इज स्टीरियो सेंटर. इट इज asymmetric carbon. Have I made my point clear? नॉर्मल है. हेलो अल्केन जो टॉपिक कर रहे हैं, इसमें एग्जांपल देखो. C CH3 C2H5 Br H. Is this carbon asymmetric? Yes, it is. Because 4 different groups H, Br, CH3 and C2H5 are attached with it. Okay, this carbon is asymmetric. It is a stereo center. Okay, this carbon is a stereo center. फिर आ रहे हैं वर्ड एक और, chirality. Chiral carbon और chirality. What is chirality? Next जो definition है नीचे, CHIRALITY. chirality. chirality भी देखते हैं.
चलो पहले सिंपल वाली चीज करते हैं. Consider a mirror here. It's a mirror. Let me draw a circle. बच्चे दोनों सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं. ये दो A एंड B, मैं इनके नाम दे रहा हूं. चेक करो these A and B whether these are superimposable mirror images or not. सुपरइम्पोजेबल मतलब इसे लेफ्ट राइट नहीं करना, एज इट इज पिक करना है, पिक करके दूसरे पे प्लेस करना है. क्या पूरा कवर कर लेगा? इसे उठाओ. एग्जैक्टली सुपर इम्पोजेबल हो रहा है ना? दिख रहा है? A एंड B आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ठीक है. A एंड B क्या है? चलिए तुम वेयर A एंड B आर A एंड B are superimposable mirror images. Okay, these are superimposable mirror images A and B. On the other side, example और देखो. This letter B, इसकी इमेज क्या बन जाएगी? कुछ ऐसी. Now, is it a mirror image? और आपस में दोनों सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है. 100% कवर कर रहे हैं, एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं. आंसर इज, बोलो कुछ. नो सर. आंसर इज नो. ठीक है. द C and D, C and D are non-superimposable. Non-superimposable mirror images. मतलब मिरर इमेजेस बिल्कुल हैं, बट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते. These are non-superimposable mirror images. अब डेफिनेशन रीड करके देखो. नाउ यू नो द बेसिक. अब डेफिनेशन रीड करते हैं. दी ऑब्जेक्ट्स, कौन साइड वाला छोड़ दो, ये कॉपी करा हुआ है एनसीईआरटी से, इसलिए पूरा लाइन नहीं आ गई और यहाँ से रीड करना है. दी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है, लाइक अ पेयर ऑफ हैंड्स, लाइक द इंग्लिश लेटर B, लाइक द इंग्लिश लेटर L, ठीक है, और Z. एक्सक्यूज मी सर. सर मानिक वेटिंग रूम में, आप उसको अलाउ कर दीजिए अंदर. मानिक यार, मानिक की आवाज नहीं यार. ओके, ठीक है. The objects which are non-superimposable. So obviously keyword is this non-superimposable.
on their mirror images are said to be chiral. ठीक है, are said to be chiral, and this property is known as chirality. ठीक है, and this property is known as chirality. While the objects which are superimposable, इसके opposite हो, the objects which are superimposable like the English letter O to their mirror images, these are called achiral. So फिर अपने point पे आऊं, A and B क्या हैं बच्चे? A and B are achiral. Okay, C and D are chiral. रीड कर लो, नोट कर लो इसे, chirality को. चल लिख रहा हूं, conditions for a molecule to be optical active. दो कंडीशन होंगी जो ऊपर लिखी हैं, उन्हीं को लिख रहा हूं. नंबर 1, it must contain stereo center. Remember this? Asymmetric carbon. चारों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए. It must contain asymmetric carbon. Number 2, it must be chiral. The molecule must be chiral. Chiral means non-superimposable to its mirror image. Non-superimposable to its mirror image. ठीक है, चेक करें कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हैं. हाँ जी, कायरल हैं या नहीं? ऊपर का थोड़ा लिखना रह गया सर, तो हाँ ऊपर बोलो. पहले इससे नोट कर लें तो बाकी को मैं दे दूँ. इसके ऊपर 1 सेकंड बचा. इसके ऊपर है क्या था? दिस डायग्राम. अनीश, इज इट ओके? हो गया सर नोट, वो थोड़ा सा रह गया था. So we have done molecular asymmetry, chirality
और लास्ट टॉपिक करना है आज का, इससे पहले बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन चली जाए दिमाग में। एनेंशियोमर्स, सिमेट्री डन, कायरलिटी डन। दोनों प्रॉपर्टी अगर टिक टिक हो मींस असिमेट्रिक कार्बन भी हो, कायरल भी हो मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अब अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, साइंटिस्ट हो ना सारे साथ, देन कम बैक टू दिस डायग्राम। अब मैं थर्ड पार्ट को आउट कर रहा हूं, थर्ड पार्ट नहीं, सिर्फ इसे फर्स्ट और सेकंड को, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं बोल रहा हूं दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी उसने। कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन भी है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है जो वो कायरल भी है। ठीक है। इट मींस वो लाइट को रोटेट करेगा। अपन क्या, लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? दो ऑप्शंस है ना। लाइट तो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है। सिंगल कंपाउंड कैन रोटेट इट्स डायरेक्शन ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों डायरेक्शन में तो हो नहीं पाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज। If the substance rotates the plane of polarized light to clockwise direction, ये फर्स्ट वन था जो, उसे बोलते हैं बच्चे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। If another compound rotates that levo anti-clockwise direction, it is levo rotator. ओके। और ये पक्का है, जैसे आपने MOT में +1 में पढ़ा था, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे? दो ही फॉर्म होते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। एक BMO होता था, एक ABMO, मतलब एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार, या एक पाई और एक पाई स्टार। यहाँ पे भी सेम है। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है तो उसका एक लीवो रोटेटरी पार्टनर भी होगा। तभी बोल रहे हैं ना नॉन सुपर इम्पोजेबल, मीन्स ये हमेशा पेयर में होंगे ऐसे। ठीक है। C है तो D भी होगा, अदरवाइज C की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। इनको बोलते हैं बच्चे एनेंशियोमर्स। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एनेंशियोमर्स, जो ऑप्टिकल सब्सटेंस है दी स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स तो हैं बिल्कुल, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, these are known as enantiomers. Definition याद रखना इंपॉर्टेंट है। These are known as enantiomers. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, जो ये मैंने बनाई थी B और B। ठीक है। इनको इकट्ठा क्या बोलेंगे? These are known as enantiomers. ठीक है। Enantiomers possesses identical means 100% same physical properties. इनका melting point perfect same होएगा, melting point same होएगा, boiling point same होएगा, refractive index और any other physical point quantity बिल्कुल डिट्टो होएंगे। बट इनका डिफरेंस क्या होएगा? The only difference is the respect of rotation of plane of polarized light. एक लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है। The one, if the one enantiomer is dextrorotatory, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है जो, the other will be levorotatory. दोबारा देख लो,
जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स थे, ये बी और ये, ठीक है, इनको बोल क्या रहे हैं? दीज आर नोन एज एनेंशियोमर्स। इनकी बिल्कुल परफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, परफेक्टली सिमिलर, सॉरी आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, बट दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यही डिफरेंस है, इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब आ जाओ मेरे फेवरेट, जो हमने इस गेम की एग्जांपल बहुत जगह पे ली है। जूम आउट करना है को हाँ जी, मैं कर रहा हूँ बाद में। ठीक है, इस गेम की एग्जांपल +1 में तो बहुत बार ली है, टग ऑफ बार्स। यही है ना, स्पेशली वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाने के लिए डिस्कस करते थे। यहाँ पे फिर उसी की एग्जाम हेल्प ले रहा हूँ। ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, जो उस गेम का जो रस्सी होती है, रोप होती है, उसका मिडल है बिल्कुल। यहाँ पे एक कॉर्नर पे है बच्चे बी, दूसरे कॉर्नर पे है इसकी मिरर इमेज। ये बी से अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी मिरर इमेज अपनी तरफ खींच रही है। अब मुझे सोच के बताओ अनूप, कौन ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा? चलो सर फटाफट एक बार नेक्स्ट। क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है, टग ऑफ वार गेम तो क्लियर है ना, जो एग्जांपल है। हाँ जी सर। अच्छा, उस वार उस रोप के सेंटर में, सेंटर जैसे लिखा, उसे सपोज करो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ओके सर। एक बी मॉलिक्यूल है, वो उसे अपनी तरफ रोटेट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी मिरर इमेज है। कौन जीतेगा, ये क्वेश्चन है। चल तू ही दे दे अब, माइक ऑन है, तू ही आंसर कर सर दे। सर दोनों सर कोई भी क्लॉकवाइज। सेम ही होगा, हाँ क्योंकि जी, सर दोनों इक्वल नहीं, फोर्स मतलब हाँ, इक्वल तरीके से होंगे। सेम मतलब मैं समझा नहीं आंसर। सेम मतलब सर सेम का मतलब ना वो मतलब फिर ऐसे मतलब बोलना, खींच दोनों। खींच ही नहीं पाएंगे, हाँ सर वही, या मतलब 5-5 कहीं मिनट ज्यादा डिवाइड कर होगा। हाँ लेंगे। जी सर, कोई भी खींच नहीं वो। हाँ जी, गुड, ठीक है। अगर ए, हाँ, पर इससे भी सर वो याद रखें मिडल ऐसे। मतलब ठीक मिडल ठीक में है, ही मतलब होगा। ऐसे ही रहेगा जैसे है, ठीक है। द मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट, ठीक बोला आंसर, ठीक है बिल्कुल तेरा। द मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल एनएंशियोमर्स, दोनों अगर इक्वल प्रोपोर्शन में डेक्स्ट्रो और लीवो, उनकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगी? 0, ठीक है। इनकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगी? 0। वो ना लेफ्ट रोटेट होएगा, ना राइट, ना क्लॉकवाइज, ना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस मिक्सचर को बोलते हैं बच्चे, सच अ मिक्सचर इज नोन एज, ये क्वेश्चन ऊपर आ गया, एक सेकंड, नो, such a mixture is known as racemic mixture, is known as racemic mixture। जब लेक्चर स्टार्ट किया था, एक पॉइंट बोला था ना, रेसिमाइजेशन, तब मैंने बोला था बाद में करें। सच अ मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, ये होता है बच्चे रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर क्या है? जब दोनों एनएंशियोमर इक्वल अमाउंट में हो, उसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब पॉइंट जो भी पूछना है, जिसने पूछना है बोलो।
आ जाओ फिर इस क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। सिर्फ एक चीज देखनी है इसका आंसर सॉल्व करते हुए, क्या कंसर्न्ड कार्बन के साथ चारों ग्रुप सेम लगे हैं या डिफरेंट है। मैं आपको हेल्प कर देता हूं। फर्स्ट मॉलिक्यूल में किस कार्बन पे फोकस करना है, इस कार्बन पे। चेक करो और फटाफट आंसर दो। इज इट कायरल, मतलब कौन सा कायरल है दोनों में से, कोई है या One. नहीं। फर्स्ट वन इज कायरल। गुड। चारों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दोनों बी आर है, इट्स अ कायरल। ओके, नेक्स्ट में चलो। अगेन पहले कार्बन कौन सा देखना है, फोकस ऑन बच्चे दिस कार्बन, सेंट्रल दिस कार्बन। सर कायरल। हाँ, कौन से वाला, वही तो पूछ रहा हूँ, दोनों में से एक तो है ही है। कायरल, असिमेट्रिक, कुछ भी बोल दो। ये चारों ग्रुप अलग अलग किस में लगे हुए हैं। First one. आंसर इज वन। ठीक है, इसमें देखो इस कार्बन के साथ ये दो ग्रुप सेम है, सेंटर वाले के साथ दिख रहे हैं दोनों, CH2 CH3 CH2 CH3। लेकिन इसमें क्या है, चारों अलग अलग है। मैं डिफरेंट कलर में कर रहा हूँ। एक H है, दूसरा OH है, थर्ड इज CH3 एंड फोर्थ इज CH2 CH2 CH3। बिल्कुल ही डिफरेंट है। दिस इज कायरल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल देखो प्लीज। Which one? हिंट दे दूं ऊपर क्वेश्चन में। चेक 4 different groups। और कार्बन एटम, किसी को तो नन। हाँ जी, Sir, कोई भी. फर्स्ट। फर्स्ट। ठीक है बच्चे, फर्स्ट इज द आंसर। फिर भी एक हिंट, इस कार्बन को देखना है। स्ट्रक्चर बनाऊं फर्स्ट का, देखो CH3 CHBr CH2 CH3। फर्स्ट वन इज दिस। सेकेंड वाले का बनाया अगर CH3 CH2 CH2 CHHBr। इसमें तो दोनों सिमिलर हो गए ना, नॉन कायरल। बट इसमें है कुछ डिफरेंट। Br अलग है, H अलग है, CH3 अलग है, CH2 CH3 अलग है। चारों अलग अलग ग्रुप्स है ना। दिस वन इज कायरल, असिमेट्रिक। इस कार्बन पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, बाकी कार्बन कोई भी देख लो, मैं तो इजी किया है हिंट देके। सो इस चैप्टर, इस टॉपिक में जो आज करा है, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे,